اس میں اگر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جائے تو سارا ڈرم خالی ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اور یہ ایک چھوٹا سا چھید ہوتا ہے جو کئی دفعہ صرف ایک ایماندار کی زندگی میں ابلیس کر دیتا ہے ناشکری کا، یعنی خداوند کو تھینکس گیونگ نہ کرنے کا. اس کو وہ تو آپ کو برکتیں دیتا جا رہا ہے لیکن ہم کئی دفعہ اس کو کچھ پے بیک نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑا خاص پوائنٹ ہے جس میں اکثر ایماندار مار کھا جاتے ہیں. اس میں حوالے تقریباً بائبل مقدس میں بہت حوالے ہیں اور یہاں پہ تقریباً میں نے 20 کے قریب حوالے لکھے ہیں جن میں سے کچھ ہم آج پڑھیں گے، باقی ان کو آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بعد میں مجھ سے لے بھی سکتے ہیں. لیکن آج جو پہلا حوالہ ہم پڑھیں گے وہ ہے تھسلنیکیوں کے نام کا پہلا خط ہے جو مقدس پولس رسول نے، یسوع کے رسول نے لکھا، اور اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت. بڑے ایماندار رہے جو اس بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں ناشکری کی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دعا بھی بڑی کرتے ہیں، ہم تو دعائیاں بھی کئی دفعہ دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، پرابلمز سالو نہیں ہو رہے. اور وجہ اس کے پیچھے جو ہوتی ہے وہ ناشکری ہوتی ہے، یعنی خدا سے لیتے جانا، چیزیں لیتے جانا، لیکن کبھی بھی اس کو پیچھے مڑ کے شکر گزاری اس کی نہ کرنا. اگر ہم پہلا تھسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پہ، بلکہ ہم اس کو 16ویں آیت سے پڑھتے ہیں، لکھے ہر وقت خوش رہو. کیا کرو؟ بلا ناغہ دعا کرو. کیسے دعا کرنی ہے؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. اتنی باتوں میں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت، یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ چرچ کو خدا کا خادم کلام لکھ رہا ہے کہ دنیا داری کی تم بات نہ سوچو، دنیا کے بارے میں خیالات نہ کرو. میں تمہاری بات کر رہا ہوں جو تم مسیح میں ہو. مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. آمین. کیا مرضی ہے؟ کہ تم ہر ایک بات میں کیا کرو؟ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ شکر گزاری کا ایک خاص اگر مقصد یا مطلب دیکھا جائے تو ایک خاص اس کا مطلب جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے جو احسانات ہم پہ کیے ہیں اس کے بدلے، بے شک ہم جو جتنے خدا نے ہم پہ احسانات کیے ہیں ہم ان سب کا بدلہ یا پے بیک خدا کو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس کے لیے خدا کو تھینک یو بول دینا. جس طرح اگر کوئی ہم پہ کوئی احسان کر دے، اگر کوئی ہم پہ مہربانی کرے تو ہم اس کو اگر تھینک یو کچھ بول دیتے ہیں تو وہ شکر گزاری ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ آج کل کے کئی ایمانداروں کا بھی یہ حال ہو چکا ہے. ہم مانگتے رہتے ہیں خدا سے جب بھی دعا میں بیٹھنا ہے. آج کل گیت بھی زیادہ تر یہی آ گئے ہیں منگن والے ہی. سنے نا، یسوع سانو آ دے دے تے یسوع سانو آ دے دے تے یسوع سانو. تے گیتوں میں بہت کم شکر گزاری رہ گئی ہے. پریز کرنا، میں آج جب اس کا سرچ کر رہا تھا حوالے کے لیے تو جب میں زبور کی کتاب کو پڑھا اتنی زیادہ، سب سے زیادہ تقریباً حوالہ جات جو ہیں وہ زبور میں شکر گزاری کے ملتے ہیں. زبور 100 اس کی 4 آیت میں خداوند کا بندہ کہتا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے فاتحوں میں داخل ہو. زبور 97 اس کی 12ویں آیت میں بھی شکر گزاری کا ہے. پھر زبور 95 میں بھی وہ شکر گزاری کے بارے بات کرتا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. پھر زبور نمبر 92 پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا. کیا ہی بھلا، یعنی بڑی چنگی گل کہہ رہے خدا کا شکر کرنا. لیکن آج کل ایماندار، اچھا اصل میں بات یہ ہے جب ایک ایماندار شکر گزاری کرتا ہے تو ہم در اصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے آنکھیں کھول کے سنیے آج
जब हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, हम खुदा को ये कह रहे होते हैं, खुदावंद जो तूने मुझे दिया है मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे अपने फजल से दिया है। याद रखिए, शुक्रगुजारी का एक मतलब ये है, आप खुदा को ये बोलते हैं, खुदावंद जो तूने मुझे दिया है मैं इसके लायक नहीं था, तूने मुझ पे ये एहसान कर दिया, इसके बदले में तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। इसको भी शुक्रगुजारी कहते हैं। तो फिर अगर कोई बंदा है, अगर उसको कोई चीज दी जाए, वो आगे से अगर शुक्रगुजारी नहीं कर रहा, इसका मतलब वो खुदा को ये कहने की कोशिश कर रहा है, तू मेरे ते को सहन नहीं किया, मैनू दिता है, मैं इस लायक है सा कि तू मैनू दिता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जो बंदा शुक्रगुजारी नहीं करता वो तकब्बर का मारा मगरूरा बंदा, कह सकते हैं ना। यानी आप ये कह सकते हैं कि शुक्रगुजारी जो है वो हम्बलनेस की भी निशानी है। हम्बलनेस मतलब आजिज़ी। आज कई किस्म की हम शुक्रगुजारियां पढ़ेंगे। अहबार की किताब में आप पढ़ सकते हैं, वहां पे बार बार खुदा कह रहे हैं, अगर तुम शुक्रगुजारी करना चाहो तो मेरी हुजूरी में वहां पे खुदा ने तरह तरह की चीजें बताई हैं। शुक्रगुजारी करो तो ये हदिये लेके आ सकते हो, नजराने लेके आ सकते हो, ये चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं समझदारी है क्या। हमने क्या पहली चीज सीखी है, शुक्रगुजारी का मतलब यह है कि खुदा के एहसानात के लिए खुदा को कुछ पे बैक करना। समझ रहे हैं ना, यानी हम सारा तो उसको मूल्य अदा नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं अपने छोटे जिस्म में रहते हुए, खुदा के सामने तो हमारी कोई औकात नहीं जितना वो बड़ा खुदा है, लेकिन हम जितना भी उसको अपने अल्फाज से, अपने रुपए पैसे से, अपने हदियों नजरानों से जितना भी उसको कुछ पे बैक कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खुदा की उर्दू की समझ आ रही है ना, समझ लग जाती है ना। इसलिए शुक्रगुजारी की पहली डेफिनेशन। फिर इसका मतलब दूसरी चीज हमने ये सीखी है, शुक्रगुजारी करने का मतलब ये है, हम खुदा को ये कहते हैं कि जो तूने मुझे दिया है मैं इसके लायक, बल्कि तूने मुझे अपने फजल से दिया है। अब कलाम हमें क्या कहता है, ये हुक्म दिया जा रहा है। एक होता है भाई दरवाजा बंद कर दो प्लीज, वो अगर ना भी ना कोई करे चल खैर है, उन्हें रिक्वेस्ट की थी, पता नहीं मनी सु के नहीं मनी, वो गुनाह नहीं है, माननी चाहिए वो भी। एक होता है हुक्म देना, चल दरवाजा बंद कर गया, समझ रहे हो ना। तो यहां पे हुक्मिया फिक्रा कहा जा रहा है। पहला क्या, हर वक्त की रहो, सोते रहो, हर वक्त खुश रहो। दूसरी बात बिला नागा। तीसरी चीज, हर एक बात में क्या करो, इसका मतलब जिस तरह बाइबल में बाकी हुक्म दिए गए हैं, यह भी एक हुक्म है खुदा के कलाम में, हर एक बात में खुदा का शुक्र करो। हर एक बात में, सिर्फ चंगियां गल्लां दे विच ही, केड़ी गल दे विच, हर एक दे विच चंगे हाल भी आ जांदे ने ते नाल चंगे भी ते माड़े दो ही आ जाते ने। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज के ईमानदार जब तक हालात अच्छे रहते हैं तब तक कहते हैं खुदावंदा तेरा शुक्र है, लेकिन कुछ इथे आप चेंज है अपने, जो हालात चंगे हो जाते हैं फिर तो असीं कुछ भी नहीं ना कहते, ते जो माड़े होंदे ने फिर असीं दुआ कर रहे हैं। लेकिन लिखे हर एक बात में क्या करो। कई दफा ईमानदार इस बात पे ठहर जाता है, नहीं जी हुण मैनूं शुक्रगुजारी करने की जरूरत नहीं है, हाल मेरे एडे माड़े ने। लेकिन आइए अगर आप मेरे साथ दानियल नबी का सहीफा खोलेंगे, उसका 10वां बाब खोलिए, किस किस हाल में हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। बल्कि 10वां नहीं, इसका हम बाब खोलेंगे 6ठा बाब और इसकी 10वीं आयत। यहां पे एक वाकया ये है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आप सारे इस वाकये को जानते हैं कि एक बंदा था दानियल और वो दूसरे मुल्क में कैद होके गया, असीर होके गया हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ क्या, वहां पर इसके मुखालिफिन ने एक उसके खिलाफ साजिश ये बनाई, हम ऐसा करते हैं कि इन्हों फसाने आ ते होर किसी काम च आप इन्हों फसा नहीं सकते, आप इंज करने एक बादशाह को दस्तखत साइन करवा लेने, बादशाह से ये कहते हैं बादशाह 30 दिन तक, एक महीना तेरे अलावा जो किसी और की इबादत करेगा वो कहां डाल दिया जाए, करजाई से डाल दिया जाए, ताकि सौवे हिरजे भी आदत है घर भी,
किस में डाल दिया जाए? शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आज हमारे खुदा ना खास्ता इस तरह के हालात बन जाए ना, अगर कोई कह दे कि जेड़ा गिरजे गया उन्होंने किधे सुट देना? शेरां दी मांद च। चपा के ना लै पहले ही ठंड तो डरे होने, चल हम लपा दी सुट्टे नहीं पता, परसों की ऐलान होया जे दूसरी अगे ही चाहते सो भी असी मरीए। गिरजे नहीं भाई जी, गिरजे नहीं आउंदे, इनू गिरजे आउंदी पई आ, तो उधर केड़ा हुक्म चल गया शेरां दी? हैरान हो रहा था मैं इसकी जिंदगी को पढ़ के। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसकी आदत बनी हुई थी। अगर आप मेरे साथ पढ़े 10वीं आयत, जब दानियेल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए। केड़े नविश्ते थे? दानियेल ना थोड़ी बुलंदी मिल गई है, केड़े दस्तखत होए सी? असि शुक्रगुजारी की करने, अच्छा मैं इंटरव्यू दिता है, मैं पास हो गया, मैनू तरक्की मिल गई है, मैनू अगली नौकरी दे विच और प्रमोशन मिल गई है, मेरी 500 रुपए तनख्वाह वध गई है, ते आपां घर आके मसले ते फिर शुक्रगुजारी करने आ। लेकिन पढ़िए इस खुदा के खादिम के बारे में, लिखे जब इसको पता चल गया कि उस नविश्ते पे दस्तखत हो गए। किस नविश्ते पे? यानी जो अब से खुदा की इबादत करेगा किसके आगे डाल दिया जाएगा। और इसको ये भी पता है कि ये किसी और के लिए नहीं, सारी साजिश मेरे लिए रची गई है। तो घर आगे रोन लग गया, ऐसा लिखे। पढ़िए, जब दानियेल ने मालूम किया उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल, हस्बे मामूल का मतलब है एज यूजुअल, जैसे वो पहले भी हर रोज करता आ रहा था। इसका मतलब दानियेल की आदत इतनी पक्की शुक्रगुजारी करने की बन चुकी है। दानियेल को अब ये है, हालात चंगे हों ते हालात माड़े हों, हालात अच्छे हों हालात बुरे हों, मेरा खुदा मेरे साथ है और मैं कोई किसी तरीके के साथ मुझे शेरों की मांग की शुक्रगुजारी करने से रोक नहीं सकती। शेर मुंह खोले हुए हों, आज हमारे लिए उस तरह तो शेर मुंह खोले हुए नहीं होते। हम कई दफा हमारे माली हालात में कई दफा शेर मुंह खोल के खड़े होते हैं। हमारे घर में कर्जा में नजर आ रहा होता है, हमारे घरों में बीमारियां में नजर आ रही होती हैं और वो शेरों की मांग बन के हमारे सामने खड़ी होती हैं। ईमानदार की दुआ पता की होंदी है? यीशु इन्हें जो कही यीशु मसीह खुदा नूं पता की कहंदे ने? खुदा हुंदा जे तू सवेरे सवेरे मेरा काम ना कीता ते मैं आ कर देना ही, मैं गिरजे नहीं जाना कल नूं, तो खुदा कहना ना आ जा। खुदा जेड़ा काम 10 दिन छोड़ा हुंदा खुदा होर लमकांदा है। खुदा कहना धमकी लाई आला फिर क्या खुदा का बिगाड़ लेंगे? वोट पाने ने खुदा नूं खुदा बनाने वास्ते कितनों ने इलेक्शन में खुदा को जिताया वोट पा के, पाया जी कि नहीं? खुदा खुदा है, हम अगर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे वो फिर भी खुदा है, हम अगर उसकी शुक्रगुजारी नहीं करेंगे वो फिर भी खुदा है। लेकिन दानियेल से सीखने की बात हमें ये मिलती है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जब इसने देखा उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो जैसे पहले हस्बे मामूल घुटने टेक कर, कैसे खुदा के हुजूर में दुआ और उसके सामने गलेडू सुट के रोता रहा। अल्फाज क्या लिखे हैं? अगर शुक्रगुजारी का लफ्ज भी चौकाट दिए, खुदा के हुजूर दुआ करता रहा, लफ्ज फिक्रा कंप्लीट हो जाता है ना। लेकिन खुदा के रूह ने मुनासिब समझा ये लफ्ज लिखा जाए यहां पे, ताकि आज मैं और आप जान सकें शुक्रगुजारी। कई बार ये चीजों रोटी खाने चाहिए ना, दुआ करया करो, और भाई तुसी करो रोटी कड़ी बीमार है, कई कहते हैं अरे किनू मैनू याद है भाई रोटी खाने तो पहले दुआ करो, रोटी कड़ी बीमार है। सानू आदत असल पई है बीमारां वास्ते बस करन दी, तां असीं रोटी नूं की कहने केड़ी ये बीमार ते नहीं पर तेनू ना किते कर दे तां शुक्रगुजारी कर। और हेरा लिखा है कि उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। जब दस्तखत हो गए हैं तो फिर भी क्या कर रहा है खुदा की, और फिर नतीजा क्या निकला? शुक्रगुजारी ने शेरों के भी मुंह बंद करके रख दिए। हालेलुया। आज हो सकता है आपके हालात बुरे चल रहे हो,
लेकिन खुदा की तरफ से पैगाम आपके लिए ये है, अगर आज का ईमानदार खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे, आपके उन सारे शेरों के मुंह खुदा अपने फरिश्तों को भेज के यीशु के नाम में बंद कर देगा। हालेलुया। पर की करनी पैनी है? खुदावन तेरा ते ऐ असा कदी किया ही नहीं। मैं हैरान हो रहा था यीशु मसीह के बारे पढ़ के। हवाले 2-3 खोलो मेरे नाल। मत्ती की अंजील, जो शेरां दी मान दे विच गया ना दानिएल, ते शेर भी बंदे बन गए। अरे बंदा बन जा, शेर की बन गए। अब हवाले लिख रहे, सिर्फ मैं 1-2 पढ़ देता हूं। तेरे जो किन्ने ने जो रोटी खान लगे पहले शुक्र अदा कर दे, हद चुको हाँ सच्ची उसी तरह करो ताकि मैं गिनती मारा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ आधे आधे भी कीते 12.5 लोग ने, 12.5 13 है। मैं हैरान होना भाई, हम कई दफा मतलब रोटी खाने कोई आ भी पकाया आज चौक के पर सुटो इनू। और मैं देखता हूं जब सुबह ड्यूटी पे जाते हैं सारे भाई, आप देखते होंगे वो कई दफा मैंने देखा वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं होटल के बाहर बैठे, और वो पता नहीं किधर से वो मांग के जाते हैं होटल पे, पाजी एक रोटी दे दो, वो दे दे। पहले वो बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, फिर एक रोटी सुक्की जेड़ी वो किसी कम दी ना होए, लोग को गाहक ना लेंदा होए, वो फिर उसको दे देते हैं। फिर वो आके इतनी खुशी के साथ वहां पे बैठ के उनको देखता हूं कि वो सर्दी होती है, बाहर होटल के बाहर बैठे, वो रोटी सड़क पे ऐसे बैठे बड़ी खुशी से, छोटे छोटे एडे बच्चे बह के बड़ी खुशी ना खान दे होंगे ने। तो मैं कहना ओए होए असी रोटी अगे पक्का हो ना, कोई कई बार मुर्गी च नमक घट होए, आ भी पकाया ही है, लड़े चौक के कच्चा कच्ची पानी सारा ले दो मेरे जरा भी। और शुक्रगुजारी कभी हमारे मुंह से निकलती नहीं है। और गुरु साहब अक्सर कहते कई बार अब्बे के खर्चे इधर रोटी खाइए ना, तो कहता मुर्गी पकी है ना, आ भी पकाया जे। जो बंदा आप कमान लग पे ना, फिर दाल होए ना किसी ने कम दी, मजा आ जाए थे खा, है ना। हमें ना कई दफा आसानी से चीजें मिल जाती हैं और हम शुक्रगुजारी नहीं करते। कई दफा दस है ना, उस दिन भी मैं चर्च में बता रहा था कि जो आपके पास है लोगों का वो ख्वाब है, आपके पास तो वो है, इसका मतलब ये नहीं हर किसी के पास है। शुक्रगुजारी बड़ी बड़ी इबादत है। अब मैं आपको हवाले अब सिर्फ एक इसके बारे में पढ़ता हूं, मैं हैरान हो गया। मैं कहा यीशु तेरे वांगू जिंदगी गुजार रही है, किदे वांगू थल्ले नहीं लेवल आउन देना, किदे वांगू नहीं तो गुजारनी, किसकी तरह? यीशु आपकी तरह जिंदगी गुजारनी है। और मैं हैरान हो रहा था बाइबल में ये पढ़ के, मत्ती की इंजील और उसका अगर हम 15वां बाब खोल लें और उसकी 36वीं आयत, यहां वो सिस्टम है जब 4000 लोग हैं और सिर्फ चंद मछलियां, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 7 रोटी और थोड़ी सी मछलियां हैं। 36वीं आयत मत्ती 15:36, उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर यीशु ने क्या किया है? हाँ जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए, क्या किया? किसने? तो ये सुनो कि शुक्र करने की लोड़ सी। यीशु हर काम किदे वांगू करना है? तेरे वांगू यीशु जी करना है किदे वांगू? मैं हैरान हो रहा था, हवाले लिख लीजिए, मत्ती 15:36, मत्ती 26:26, मत्ती की इंजील 26:27, मरकस 8वां बाब 6 आयत, मरकस 14वां बाब 23 आयत, लूका 2रा बाब 38वीं आयत, लूका 17वां बाब उसकी 16वीं आयत, और आगे भी बड़े अभी लिखे हैं, उससे बाद में लिख लीजिए। जितनी दफा बाइबल में यीशु के रोटी तोड़ने का जिक्र है, पढ़ लीजिए सारी बाइबल। जब भी यीशु ने रोटी तोड़ी, लिखे यीशु ने शुक्र करके रोटी तोड़ी। क्या करके? अपा उंज भी की अपा ते पहला आपा नु पूरा सताने आपा तो पकाया की है, आपा चारी आंदी आपा ने पका तो लिया, कल आप ही पकाएगा, मर जा रहे तू। एंड मेर कई बारी है जो सताना की बेचारी नु, ये कहते हो पकाए चूल्हे ते अपने हाथ साड़े,
अपने मतलब वो सेक बेचारी बहन हाथ आगे बारी तू की आपा पकाया है, आपा कहती है कल आपा आप ही पकाएगी, फिर आपा लग पता जाता है शुक्रगुजारी। यीशु ने क्या करके रोटी तोड़ी, मैं हैरान। जब भी सारे वाले पढ़ लो, यहां तक कि जब अपना बदन कह के शागिर्दों को दिया, 5 शागिर्द की इबादत में क्या पढ़ते हैं, यीशु ने वो रोटी ली और क्या करके तोड़ के शागिर्दों को दी, प्याला लिया, क्या करके शागिर्दों को दिया, यीशु की आदत से शुक्रगुजारी करन दी ते आपा दी। और ये तो डॉक्टर्स भी, भाई को भी पता होगा, सारे डॉक्टर्स भी, विश्वरूप साहब भी कहते हैं, वो अंकुर नोला साहब ने उनसे क्वेश्चन किया, कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या साइंस अब ये कहती है कि अगर बंदा खुशी से रोटी खाए तो क्या ये अच्छी है सेहत के लिए? डॉक्टर कहते हैं अगर कोई बंदा गुस्से में रोटी खाए तो उसके बदन को नुकसान पहुंचाती है। तो अगर खुश होकर शुक्रगुजार क्यों, जिस डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है ना, अगर कोई बंदा खुश होकर रोटी खाता है तो ये उसके बदन में ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो जल्दी उसकी खुराक को डाइजेस्ट कर देते हैं, उसका स्टमक ठीक रहता है, बंदे को परेशानियां नाल मैदा खराब हो जाता है ना। ते जो रोटी खान लगे आ पहला आप 2-4 इधर नूं शुक्री दियां कढनियां मारनियां कोनियां, 2-4 नशुकरी दियां इधर नूं ते अंदर एंजाइम आप पैदा कर लेने आ जेडे रोटी नूं नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कह लो तेजाब दे विच रोटी सुट देंदे हो मतलब हमारे स्टमक में। लेकिन जो बात मैं करो समझिए, शुक्र करने को अपनी आदत बना लीजिए। यही रात को सौंदे ने तो लागे ना मोबाइल रख के ते डाटा ऑन करके, ताकि रातों रात जेडे मैसेज ऑन मैंने पता चलता जाए, और जैसे ही सुबह उठेंगे ना चढ़ा चुकना आए हाय वो कहते को मुर्गियां से जाके बाड़े वेखना पैंदा किसी मुर्गी ने अंडा तो नहीं दिता, फिर जल्दी जल्दी चुक लेंगे, कोई और ना चुक के ले जाए। और इसी तरह आज के ईमानदारों का हाल बना है। और भाई तू पहले क्या कभी उठ के सुबह शुक्रगुजार, कई आइटे तोहफे होंगे ने, वो मतलब कई मैं ईमानदार यीशु को कबूल किए, वो बपतिस्मा लिए 10-10 साल हो गए। भाई सुबह उठ के दुआ करते हो, शुक्रगुजारी करते हो? और नहीं साल को हो गया तो कीती से सुबह उठ के ना। ऐसे ईमानदार चर्च में मिल जाएंगे आपको। तो यीशु की आदत सी ना बोले, यीशु की क्या आदत थी? शुक्रगुजारी में बड़ी पावर है। शुक्रगुजारी में इतनी पावर है, 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 शेर हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम करते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है कैसे तोड़ी यीशु ने। शागिर्द कहते हैं अच्छा कितनी, यीशु कहते कितनी रोटी है? यीशु 5 रोटी 2 मछलियां। लोग बड़े ज्यादा है, हमारा फाइनेंस कम होता है, रुपए पैसे कम है, हमारी जरूरियात ज्यादा होती हैं। फॉर्मूला एक ही बताया है, जो है उस पर शुक्र करो, खुदा का हिस्सा निकालो, यीशु के हाथों में पकड़ा दो। जब शुक्र गुजारी करना शुरू कर देंगे, आपकी जरूरियात 5000 लोगों का मतलब जो खाने वाले जरूरियात, जो 12 टोकरे बच गए उसका मतलब सेविंग भी आप कर लेंगे उसमें से। तरीका बड़े हौली तरीका, ज़बूर नंबर 50 खोलिए, उसकी 23वीं आयत। सारे हवाले तो नहीं पढ़े जाएंगे लेकिन कुछ कुछ। ज़बूर नंबर 50 और उसकी 23वीं आयत। जी क्या लिखे? जल्दी जल्दी खोलो, इतनी देर हवाला खोलना। अपनी बाइबल देते इतना देर ही नहीं लगती खोलना ते हवाला। ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत मिल के पढ़ेंगे। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो क्या करता है? तमजीद दा उल्ट की हुंदा है? ना शुक्री किथे ते शुक्रगुजारी दा उल्ट। तमजीद एक हुंदा किसी दी तारीफ करना, और दूसरा होता है किसी को बेइज्जत करना, बुरा भला कहना, भला नहीं बुरा कहना। तो लिखे जो मेरी शुक्रगुजारी खुदा कहता है करता है, वो क्या करता है? खुदा की। तो फिर जो ना शुक्री करता है वो कितना खतरनाक काम में ते अपन सोचे समझे बगैर और दिन में कई दफा ना शुक्रिया हम कर जाते हैं।
اور کئی برکات کے دروازے ہم نے خود بند کیے ہوئے ہیں. ہم کو ہوتا ہے جب بھی میری عادت ہے جب بھی میٹنگ سے جانا ہے پہلے جا کے میں نے کچھ دیر گھٹنوں کے بل ہو کے روٹی کھا لو بھائی یا کر لو بھائی, میں کہنا میں آنا وہاں اور لب دے میرے روٹی اچھے رکھی ہے, لیکن میں ملتا ہوں جا کے اپنے گھٹنوں کے بل جا کے ہونا ہے جتنے منٹ بھی, بے شک 2 منٹ ہی کیوں نہیں, گھٹنوں کے بل ہو کے خداوند جو تو نے آج کام چرچ میں کیے میں اس لائق نہیں تھا, میری محنت سے نہیں ہوئے, ہمارے روزوں کوششوں دعاؤں سے نہیں ہوئے, تیرے فضل سے ہی ہوئے ہیں. یہ ہم شکر گزاری اس کے قدموں میں دیتے ہیں. اور جب یہ کہتے ہیں نا تو خدا کہتا ہے اچھا تو یہ کہہ رہے کہ تیری محنت سے نہیں ہوئے میرے زور سے میں, پھر جا اگلی باری جائے گا تو اس کو بھی بڑھے. کوئی سانو کہے نا کوئی 200 روپیہ ہی دے دیتے, اگلی باری تو کہو منہ بنا کے اینڈ کر کے ننگے ہو, کوئی 200 روپیہ دے نا. جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایویں کسی نے لاگو نا کار بجا کے لیا نہیں کرنی تھی, کی کہنے ہونے سا این میں لے کے دیتی ہے بڑا کیا نکے ہوں آپ نا ایویں کی پتا کون سی سے کون نہیں, کسی لاگو دی سائیکل بجا کے ویہ میں لے دیتا ہی تو انہیں دی ٹور بھی نہ سمجھ جاتی, نہ لے کے دیتا نہ لے دی نہ دے نہیں ہو دینا. تو خدا جو ہمیں سارا کچھ دے رہا ہے کاش ہم اس کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. جی انہوں کہا نا خدا کہ تینے پچھلی باری دیتا سی نا شکر گزاری کی سی ہو. اور شکر گزاری صرف آپ کا بدانہ لانے سے نہیں ہوتی, ایک میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, طریقہ ہے وہ بڑا اچھا ہے, وہ نظرانہ ہے, شکرانہ ہے, بڑی اچھی وہ عبادت ہے, وہ بھی برا میں اس کو نہیں کہہ رہا, لیکن صرف اس طریقے سے نہیں ہوتا. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ کھولیں گے جو آج بڑا ہے, ہم اس میں سے اور سیکھیں گے یسوع کے فضل سے. کھولیے اس کو, عبرانیوں کے نام, بلکہ عبرانیوں 13-15 یہ لکھ لیجئے, لیکن جو آج پڑھیں گے وہ ہے افسیوں 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت. کھولے, بڑی یہ پاورفل ورس ہے, ہمیں سمجھ آنی چاہیے اس کی. افسیوں 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت. تھک تو نہیں گئے, تھکتے نہیں گئے جی, بڑا بڑا ہاللیلویہ. افسیوں 5واں باب 4تھی آیت, اور یہ میسج خدا کے فضل سے ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ کو مل جائے گا, آپ نے اس کو بار بار سننا ہے, ٹھیک ہے. افسیوں 5واں باب 4تھی آیت, افسیوں کے نام کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی, ہاں آئیے اس کی 3ری آیت سے پڑھتے ہیں. اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا واٹ لیول, مطلب کون سا لیول خدا ہم سے چاہ رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے خدا کہ ایک ایماندار سے ریکوائرمنٹ خدا کی کیا ہے کہ جیسے مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا کیا نہ ہو. ذکر کو سمجھتے نا کس کو بولتے ہیں, اور بتاؤ انہوں نے کہا آج کل کی چل رہے ہیں, فلانے دی کڑی نا فلانے نال سیٹی, اور اس طرح کی گندگی آج کل چرچ کے ایون لوگوں کے گھروں میں یہ بولی جاتی ہیں باتیں. اور پھر ہم شام کو کہتے ہیں اے ہمارے اور باپ تمہارا کہہ رہا ہے کہ تم میں ناپاکی کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا لیول خدا مانگ رہا ہے کہ ایماندار سے, اگر ہماری پرائز خدا نے بڑی, یسوع نے اپنا لہو ہمارے لیے دیا ہے, تو وہ آپ سے ڈیمانڈ بھی کچھ بڑی کرتا ہے کہ نہیں میرے بیٹو تمہارا, میں نے مل زیادہ, مثال کے طور پہ اگر یہ ساؤنڈ سسٹم ہم نے 50,000 یا 85,000 کا لیا ہے, تو جو یہ کام کرتا ہے اگر 10 لاکھ والا ادھر ساؤنڈ سسٹم لا کے رکھا جائے تو وہی صرف اس جیسے کام کرے, صرف اس میں 8 مائک لگے, تو کیا آپ کیا خوش ہو جائیں گے اس سے؟ آپ کہیں گے کہ جتنی اس کی قیمت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کی ادا کی ہے, لیکن وہ فنکشن صرف اسی والے کر رہے ہیں. خدا کہہ رہے جیسا مقدسوں کو مناسب ہے تم میں, چرچ کی بات ہو رہی ہے جو یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہو, اور بھائیو بہنوں, اور تم میں ناپاکی حرام کاری کا, ناپاکی یا لالچ اور حرام کاری کا, ہم کس لیول پہ بھی بیٹھے ہیں اور خدا کیا ہمارے سم سے ریکوائر کر رہے ہیں. آگے تو ابھی بات جو آج ہم سیکھیں گے وہ تو آگے ہے. اور نہ بے شرمی, سمجھیے اب ان چیزوں کو,
اور نہ बेहुदा गोई। बेहुदा गोई का क्या मतलब होता है? बुरा बोलना अपने मुंह से। कई दफा मजाक आजकल के जो लोग ईमानदार करते हैं, वो ईमानदार कम शैतानदार कई दफा ज्यादा लगते हैं। हाँ, काम पे जाएंगे वहां वो और होंगे, चर्च में होंगे वहां आज का ईमानदार कई दफा और होता है, अपने कारोबार पे होता है वहां डंडियां मारता है, खुदा से भी डंडे खाता है। गली में जाते हुए तो पहचाने ही नहीं ना जाते कौन है। हमें देखना किधर, हमें अपनी नजरों को भी नहीं आज तक अपने काबू में करना आया। और हम क्या है जी? हाँ जी, ईमानदार है कि वो देखने हमने हम क्या है। हो गया था भाई बेहुदा गोई। अगे एक गल आई और फेवरेट काम हमारा कौन सा? ठट्ठाबाजी किसको बोलते हैं? ठट्ठे करना। कहता मुंह वेख ले। एक बंदा मैं गया, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੁਗਤਾ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਾਰਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। तो खुदा हमसे क्या डिमांड कर रहा है? ठीक है बनी है जी, बोलो ना थोड़ा थोड़ा मेरे नाल साथ दो ना। कुछ नहीं, अब तो कोई नहीं है, शुक्र है। ठट्ठाबाजी का बंदा जान दिया, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਇੰਜ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਹਿ। कमांगा नहीं, मतलब लोग इस तरह का बोल देते हैं और मकसद अगले ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਤਰਦੀ है। क्या तेरे पे कभी खुदा की हुजूरी भी उतरी है? ठट्ठाबाजी हमारा आज का फेवरेट बन चुका है। टिकटॉक पे हम क्या देखते हैं? अच्छा फिर म्यूजिक वो लगा होंगे ना किदा का म्यूजिक है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ, ਲੋਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਿਆਮ 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 ਨਿਆਮ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਰੇ ਨੇ? ਠੱਠਾਬਾਜ਼ੀ ਕਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। बस करिए कि चलिए जरा दूर करनी है हमें ये चीजें। ठट्ठाबाजी का मतलब क्या? आज का ईमानदार खुदा हमसे क्या चाह रहा है? नापाकी का जिक्र ना हो, लालच का लालच का भी खुदा कहता जी जिक्र ना हो। खुदा तो फिर चाहता भी असी इंज ही रहिए। क्या ऐसे चाहता है खुदा? अगर वो ऐसे चाहता तो तेरे लिए मेरे भाई, आपके लिए मेरी बहनों, अपने इकलौता बेटा कुर्बान ना करता। आपकी खुशी के लिए तो वो गमगीन बना। असल में ये लोग वो होते हैं जो इन चीजों से अपनी खुशी हासिल करना चाहते हैं, जिनको खुदा की हुजूरी का भी तक तजर्बा नहीं हुआ होता। क्योंकि असल में आज रिचर्ड विम्बरान साहब, वो खुदावन के एक अजीम खादिम है, उनकी किताब में हॉस्टल से लेके आया था और अचानक आज मुझे याद आया, मैं उसको पढ़ रहा था। तो वो ऐसा खुदा का खादिम है, वो उधर ज्यादा धैर्य लोग रहते हैं ना, वो खुदा को नहीं मानते, तो उन्होंने इस तरह का मतलब सिस्टम रखा हुआ है। पास्टर वहां पे गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चर्च में रखती है और पास्टर से वो ये पूछती है, मुझे बता इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्च में कौन आया था? पास्टर बताता है इस हफ्ते ये वाला बंदा चर्च में सबसे ज्यादा आया था। इस तरह एनजीओ ने घरों चुक के ले जानी है। पिछले 1 महीने से पाक ताकत में लगातार कौन दाखिल हो रहा है? ये वाला बंदा। अगर वो पास्टर नहीं बताता, पास्टर को भी टार्चर करते हैं, उसको पास्टरशिप से हटा के नया उसकी जगह अपना बंदा मुकर्रर करते हैं, तो वो आज से इस चर्च का पादरी है। अगर कोई बंदा मिले ही ना, वो खादिम कह रहा है ऐसा होता ही नहीं कि बंदा ना मिले। अगर बंदा ना मिले चर्च को बंद कर देते हैं। चर्च खोला किस लिए? मसीहों को पकड़ पकड़ के लेके आए। आज चाइना में वो कहता है ऐसा हो रहा है अक्सर जगहों पे, और वो कहता है उन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा तंग किया कि उसको मतलब एक दिन में उसको एक जेल में रख के उसके पास इतने ज्यादा फौजी आते थे, सिर्फ उसके पास आके 10-10 दिन गालियां सिर्फ उसको सुनाते थे और सिर्फ 10-10 दिन उसके पास आके ये कहते थे यीशु खुदा नहीं है।
کہتے تھے اگر 10 دن اس کے کانوں میں صرف آواز ہی یہ پڑے گی تو یہ بھول جائے گا اپنی ساری بائبل. کہتا ہے ساری مجھے بائبل بھول گئی, سارا کچھ مجھے جو میں نے سرمن تیار کیے تھے بھول گیا. لیکن کہتا ہے ایک چیز ایک دن میرے ساتھ ایسی بار بار ہوتی تھی. کہتا ہے یسوع مسیح میرے کمرے میں آ جایا کرتے تھے اور ایک دم میرے کمرے میں روشنی ہو جایا کرتی تھی. کہتا ہے یہ جو مجھے پریزنس والا مزہ وہاں پہ ایک دن میں فیل ہو جاتا تھا, میں اپنی ساری پرانی تکلیف کو بھول جایا کرتا تھا. آج کا ایماندار اس پریزنس میں رہنا نہیں چاہتا, وہ مزے تلاش کرتا دنیا داری میں جا کے, ناپاکیوں میں جا کے, ٹٹوں میں جا کے. کاش آج کے بلیور کا یہ ایمان بن جائے. اور میرے بھائی اگر تجھے خدا کی حضوری میں رہنا آ جائے, اگر آپ کو خدا کی حضوری کا مزہ لینا آ جائے, آپ کو دنیا داری کے مزے بے مزہ لگنا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے وہ کہتا ہے میری روح خدا کی پیاسی ہے. تھوڑا دولت مند نہیں تھا, لیکن آج کل ہمیں اس کی پریزنس کی بھوک ہی بڑی کم لگتی ہے. دعا کی نہیں دیر کر دو 7 منٹ, وہ بھی نہیں کر دیں 7 دن 7 منٹ کر دیں. اور چاہیے ہمیں کیا, ہمیں اتنی بڑی برکت ہے. خیر جی یسوع نے سارا کچھ کر دیتا ہے جو تو لکھے اتنے ہی توڑ دو جتنے لکھا تھا دیاس سے. ہم ایماندار مسیحی قسمت پہ اعتبار نہیں کرتے کہ جو قسمت میں لکھا ہے. یہ لکھا جو تو بوئے گا وہ تو. بائبل اس چیز پہ نہیں آپ کو کہتی کہ جو تو لکھا جو مرضی تو دنیا سے کری جا تمہیں مل جائے گا, ایسا نہیں ہے. اگر ایک ایماندار کیسے ہو سکتا ہے, یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یسوع یوحنا سے باقی شاگردوں سے, اور یہ بھی لکھا ہے جو کلام کو دوسروں کو سنائے گا خود عمل کرے گا وہ آسمان کی بادشاہ میں بڑا ہوگا. جو دوسروں کو جو سنائے گا آپ عمل نہیں کرے گا آسمان کی بادشاہ میں چھوٹا ہوگا. اس کا مطلب آسمان کی بادشاہ میں چھوٹے بڑے بھی ہوں گے بھائیو. رینک ہوں نا بائبل میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آؤ اسے ادھر چلیے تسی جو سارے. تو اصل انجوائمنٹ دنیا داری میں نہیں ہے, خداوند کی پریزنس میں ہے. اس لیے لکھا ہے کہ جو آسمانی بخشش کا مزہ جاننا چاہتے ہو جو کہیں آسمان کی بخشش کہیں محسوس کریں گے, میں دسنا کیونکہ میں مزہ چکھے ہے. جب آپ کئی دفعہ چرچ میں ہوتے ہیں نا, آپ کو پریزنس فیل ہو رہی ہوتی ہے, واہ خداوند کی حضور پتہ ہے نا اس کا, تو آپ کا ایسے لگ رہا ہوتا ہے نہیں آج نا میں اڑ رہا ہوں ہوا میں. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نہیں کیا حضوری ہے یار, کاش یہ ٹائم ٹھہرا رہے. ہوتا ہوا کبھی آپ کے ساتھ بولیے ہوئے نا کئی دفعہ. تو وہ اس ٹائم جو آپ کو انجوائمنٹ ہو, وہ پریزنس فیل ہو رہی ہوتی ہے نا, جب آسمان کی بادشاہی پہ جائیں گے ہر وقت ویسا ہی رہے گا. وہ مزہ ہے آسمان کی بادشاہی کا. ایمان خداوند آج کلام کو اسی لیے آپ کے بندنوں کو توڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں کچھ کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں. اس اپنی آیت کی طرف تو ذرا جاتے ہیں نا. اب میں اس کو پڑھتا ہوں. اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا, اونچی بولیے, یا لالچ کا, اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا, کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے چیزاں دے الٹ کی ہوئے تیاڈے سے ایک انج دی گل لکھیے. اسی کی الفاظ متضاد بچے پڑھتے ہیں نا, تو اس میں شکر گزاری کا متضاد کیا بنتا ہے, نہ شکری. لیکن کلام ہی آپ اس کا متضاد نہ شکری نہیں بتا رہا. کلام کہہ رہے ہیں تم میں حرام کاری, ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو, نہ ٹھٹھا بازی, بےہودہ گوئی اور بے شرمی کا, بلکہ اس کے برعکس شکر گزاری ہو. اب اس آیت کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ادھر دیکھیے میری طرف بھائیوں, میں نے سنیے اس کو. آج چرچ کے لیے جو خدا کا پیغام اس میں سے وہ سمجھیے. کیا یہ آیت لکھی ہے کہ اس کے برعکس شکر گزاری ہو؟ اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ اگر کوئی ایماندار ٹھٹھا بازی کرتا ہے, بے شرمی کی باتیں کرتا ہے, بےہودہ گوئیاں کرتا ہے, اس کا مطلب وہ ناشکری کر رہا ہے. ناشکری کس بات میں کر رہا ہے؟ اصل میں خدا لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں اگر کوئی ایماندار دیانتدار ہے تو وہ زیادہ میں بھی کیا ہوگا. یعنی خدا نے جو آپ کو برکات دی ہوئی ہے, خدا وہ برکات دے کے اب دیکھ رہا ہے اگر تو اس برکت
में मेरे साथ वफादार रहेगा, इसका मतलब तू बेहुदा कोई नहीं करेगा, तुझ में नापाकी नहीं होगी, तू मेरे कलाम पे अमल करेगा, इसका मतलब मैंने तुझे ये बरकत दी है और तू इस बरकत में शुक्रगुजार रह के मेरे साथ वफादार है। ये है शुक्रगुजारी, सेम जिस तरह यूसुफ कर रहा था। पैदाइश की किताब में उसका जिक्र है। उसको पोतीफर की बीवी क्या कहती है? मेरे साथ हम बिस्तर हो। आपको समझाने के लिए आसान जुबान में कह लेते हैं, वो कहती है मेरे साथ शादी कर। तो वो क्या कहता है? कहते हैं मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का, बोलना पड़ेगा चर्च के लोगों आपको, खुदा का, यानी वो ये यहां पे रियल शुक्रगुजारी दाऊद ये कर रहा है कि बेशक तो मुझे ये बता रही है कि मैं इस वक्त कैद में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं तकलीफ में हूं, अपने घर से दूर हूं, कैद की हालत में हूं, लेकिन तू मुझे कह रही है ये गुनाह कर ले, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। अगर मैं नापाकी या बेहुदा गोई या बेशर्मी वाला ये काम करूंगा तो मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा। यानी खुदा कहेगा देखो मैंने इस बंदे को सेध दी हुई है, मैंने इस बंदे को अपनी बरकत दी हुई है, ये जहां जा रहे हैं मैं इसके साथ साथ हूं, लेकिन इसने ये काम करके मेरी नाशुक्री की है। ये लिखा हुआ है, इसके बरक्स क्या हो तुम में, क्या हो तुम में भाइयों बहनों, क्या हो तुम में? ये लिखा है कि इसके बरक्स, यानी जब आप गुनाह करते हो आप नाशुक्री कर रहे हो। कई कहते ला मैनू की खुदा ने दिता है, ओए गुर्दे बेचना कुछ जो बेच देने, कई जहाज कई बेचते हैं गुर्दे। वो किस तरह बेचते हैं जानते ने, उन्होंने कोई अपना काम वास्ते ना लभदी चीज, भाजी मेरा गुर्दा ले लो। अब तो बैन हो गया शायद ना इन चीजों पे, है ना, तो क्योंकि पीछे इसकी वो शरह जो थी बड़ी बढ़ गई थी, तो वो इस पे बैन। और अब ये है कि मतलब सिर्फ अपने को रिलेटिव को अगर बड़ा सक्का होता देना चाहे सिर्फ वही दे सकता है। तो मतलब वो जाते हैं कहते हैं इन्ने लाख का, 7 लाख का, 12 लाख का गुर्दा, और ऑक्सीजन अगर हमें वो लैनी पे किन्नी के दिन लग जाएगी, 3-4 हज़ार बहुत कम अगर लगाइए इन्नी तो लग जाएगी ना ऑक्सीजन एक दिन की सिलेंडर जितने बंदा यूज करता है। और खुदा कितने पैसों में दे रहे हैं? शाम को आपके मोबाइल में मैसेज आता है भाई आज आपका ऑक्सीजन का इतने हजार बिल बन गए। अजय भाजी डायलिसिस कराने जाओ तो इतना खर्चा आ जाता है, एक दिन का, एक दफा करवाएं तो आपके अंदर 2 खुदा ने गुर्दे लगाए हैं। आपको जरूरत नहीं हॉस्पिटल में जाके बाहरों पैप पुआ के अपना आर्टिफिशियल कम करवाने की, आपको लाखों करोड़ों रुपए का खुद का खुदा ने बनाया हुआ है। तो हम क्या कहते हैं? शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी मैनू की दिता है उन्हें, तेनू तेनू तेरा अपना आप दिता है। जब हम गुनाह करते हैं हम नाशुक्री करते हैं। लिखा है इसके बरक्स क्या हो तुम्हारे अंदर। कितनी बातों में सोचिए हमने नाशुक्री की है। खुदावंदा तू मैनू की दिता है, खुदावंदा तू मैनू की दिता है, का दिता है, ये की दावा की दिता है। रोज खांडे हैं वो कितों आउंदी है, रोज पांडे हैं वो कितों आउंदे है, मेरा लोग जींदे हैं, इन्नी मेरी ऑक्सीजन खाना है, तेनू मैं घुटदा साह तो मैं किसी होर नूं दवां है, तो मैनू खुदावंदा तू मैनू। नाशुक्री हम करते हैं और बड़े बरकत के रस्तों को बंद कर देते हैं। थैंक्स गिविंग इज अ पार्ट ऑफ होलीनेस, यही लिखा हुआ यहाँ पे, पाकीज़गी का हिस्सा है। जो थैंक्स गिविंग नहीं करते वो नापाकी में बंदे, इसका मतलब जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज से हमने क्या करना क्या करना शुरू करना है? खाना खाने से पहले हाथ ऊपर दोनों उठाओ, खुदावंद मैं इसके लायक ना था, तूने मुझे अता किया है, कई ऐसे हैं जिनको ये नहीं मिल सका, थैंक यू जीसस। खुदावंद तूने मुझे कपड़े दिए हैं। मैं जब लैब में सुबह जाता हूँ, जाती जब हम बैठ के वहां दुआ करते हैं तो वहां पे पता मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा खुदावंद तूने मुझे पहनने के लिए शूज दिए, तूने मुझे ये कपड़े, ये जैकेट दिया है, कई लोग ठंड में मर रहे हैं, तूने मुझे कपड़े दिए, तूने खुदावंद मुझे आने के लिए बाइक दिया है। वो टाइम था जब मैं बसों पे जाता, जब भाई के साथ मतलब किसी भी तरह से पैदल, कई दफा यहाँ से मुझे याद है एक दिन मैं यहाँ से जाने वाले तक टोटल पैदल गया था, जाने वाले तक यहाँ घर से लेके। तो मुझे शुक्रगुजारी करनी आती है, खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मुझे बाइक दी है, इसमें डलवाने के लिए पेट्रोल दिए है, तूने मुझे ऐसे माँ बाप दिए हैं, तूने मुझे जॉब दी है। कई माँ बाप के लिए बेटा की करना, चल पठे पुठे पांदा है
पूछिए उनसे जिनके माँ बाप नहीं है, आपको कई चीजें शुक्रगुजारी के लिए मिल जाएंगी। हमें लगी है आज से क्या करनी है, अभी कुछ और हवाले हैं, सिर्फ आपको लिखवा दूंगा बाद में, लेकिन ये खुदा की अगर मर्जी हुई अब ये चलेगा नेक्स्ट पार्ट्स में भी खुदा के फजल से। ठीक है, तो आज जितना हमने सीखा है, क्या सीखा है, शाबाश, क्या सीखा हमने, शुक्रगुजारी करनी है। आप अपने हदियों नजरानों के जरिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं, रुपए पैसे के जरिए कर सकते हैं। एक और तरीका है, हाथों को उठा के खुदावन तेरा, ये बड़ा आसान है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान है, शुक्रगुजारी कीजिए। फिर एक और जगह पे यीशु ने शुक्रगुजारी की, पता किथे, लाजर दी उत्थे जाके बोला की शुक्रगुजारी की थी, दुआ के देखो, ऐ बाप तेरा शुक्र है तू मेरी ते मुर्दा जिंदा करन तो बाद शुक्रगुजारी की थी कि पहला ते आपां की तो कराने आ इंज दियां शुक्रगुजारियां करी भाई जी, आज मैं शुक्रगुजारी दी दुआ करानी है, की होया है, मैनूं को बरकत मिलनी है। मुझे बाइबल ने ये सिखाया है। 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद शुक्रगुजारी की है कि पहले, लाजर को जिंदा करने के बाद की है कि पहले, ते आपां बाज भी नहीं कर दे, रोटी खा के भी नहीं कर दे आपां, अच्छा डकार आ जाए ना कि गलती ना, शुक्र है। या कई बार जो बच्चे का जो नेच मारी, कहो बच्चे बाप तेरा मेरे को से याद किया, शुक्र है, दो भावे अपना अंदर नजरा लगा होए। ये इन चीजों से हमें निकलना है। शुक्रगुजारी नहीं करेंगे दरवाजे कई बंद रहेंगे। जिथे जिथे शुक्रगुजारी यीशु ने की, यादगार मौजूद हुए, सारे वैसे यादगार हैं। लाजर पहले कभी कोई 4 दिन का मुर्दा जिंदा नहीं हुआ था, आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, आपके मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, शुक्रगुजारी। और चीज मिलने से पहले भी, यानी खुदावन मैं एडवांस में तेरा शुक्र करता हूं, तूने ये बरकत मुझे, तो खुदा कहेगा यार बंदा, क्योंकि आप जब इस चीज को बोलते हैं ना, तो खुदा कहते यार है मैं दिखती भी नहीं, तो पहले ही शुक्र करी जान, जाओ यार जाओ भज के काम करके हो। आप पता की करने मार मार निच्छा अपना हाल बुरा, खुदा बंदा की देता है, खुदा कहता होर कर शुक्री, और बर्बाद अपना टाइम वखरा करने वेस्ट, अपने रुपया पैसा कई बारी ना शुक्रिया कर 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 जो। और एक और हवाला लिखा, भी वो उसको पढ़ूंगा नहीं, बाइबल में लिखा है, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, अदना लोगों की तरह मतवज्जे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब हम आला लोगों की तरफ, और देखो गड्डी है तो मेरे को गड्डी भी नहीं है, और देखो गड्डी तो मेरे को मतलब गड्डी जी, अब उसकी तरफ देख के अपनी चीजों लिखे, अदना लोगों की तरफ मतवज्जे हो, ऊंचे ख्याल मत बांधो। और देखो कोठी तो मेरे को कोठा, कोठा से बड़ा होता है, और देखो लात कहते हैं ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, अदना लोगों की तरफ मतवज्जे हो। आपको असल वहां पे शुक्रगुजारी करने के लिए उभार रहा है कि अगर तुम ऊंचे ऊंचे ख्याल बांधते रहोगे, तुम्हारे अंदर से शुक्रगुजारी नहीं निकलेगी, अदना लोगों की तरफ मतवज्जे हो। देखो तुम्हारे पास पहनने के लिए एक कपड़े, एक सूट है, और किसी के पास वो भी नहीं, आपके अंदर से ऑटोमेटिकली शुक्रगुजारी निकलना शुरू हो जाएगी। तो अपना मासी ने कार ले लिए है, ते मासी का भांजा जो जी बैठा है, ते मेरे कुछ नहीं लभना, शुक्रगुजारी तो गई, शुक्र च हसद भी कई तो करते रहने, खुदा तू ओनू देती है, ये भी हसद जे, मैनू क्यों नहीं दी, लईए किसे को खुदावन तेरा शुक्र है, तू मेरे उस अजीज को दी है। और मैं अदगा कपड़े वास्ते दुआ नहीं सा कर दिया, मैं खुदावंदा सारी कलीसिया नवे कपड़े दे दे। मेरा बहुत दिन पूछा कितों आते, अदगा तेन आप लैके देने ने, अगर कहते तेन दईए तो हरी आपा देना सारा। यानी हमें इन चीजों के बारे देखना है कि शुक्रगुजारी के हमारे पास कौन कौन से मौके हैं, और शुक्रगुजारी के लिए पावरफुल आयत ये है आपके पास, ऊंचे ऊंचे ख्याल बल्कि अदना लोगों की तरफ भी मतवज्जे हो। उनके पास देखिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कई लोगों के पास नहीं है, जंग जिन मुल्कों में चल रही है जाके देखिए,
फिर कई लोगों को दुआ करने नहीं दिया जाता। लोग, आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, लोग सुबह 3 बजे, रात को 2 बजे जानवरों के वो जो अस्तबल इस तरह की चीजें होती हैं, डेरियां दे विच लोग जमीन दोजों ने नीचे बनाई हुई हैं चीजें, वहां पे जाकर वो इबादत करते हैं। और हम कभी शुक्रगुजारी नहीं करते, खुदावंद तूने अपना घर दिया हुआ है, हालेलुया, जो आपके पास है लोगों का, वो तो उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं बार बार खुदावंद की हुजूरी में, अगर खुदावंद ने मुझे चुना है, ये उसकी तरफ से आपके लिए कलाम है। अगर आप दयाकी देना शुरू कर दें, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, उसके साथ वफादार रहें, तो खुदा का घर अगर आपने बनाया है, अब खुदा आपके घर बनाएगा यीशु के नाम में, और ऐसे बनाएगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं हुए आज तक। पत्थर लगना छोटी बात होगी आपके घरों में, आप ऐसे प्लाट खरीद लिया करेंगे, आमीन। लेकिन सिर्फ वफादार रहिए, जो है उसके लिए शुक्रगुजारी कीजिए, जो नहीं है उसके लिए भी आ जाएगा, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, मेरे पास बड़े हवाला जाता है। अमाल में 27-35 में मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी जब ये जहाज में थे, यीशु वाला फार्मूला लगा के लिखा, उन्होंने भी शुक्र करके रोटी तोड़ी। ये बड़े हवाला जाता है, लेकिन हम इसको यहां पे आमीन करते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि अगर शुक्रगुजारी करते हो ये तुम्हारी माकूल इबादत है, यानी हाँ, थैंक यू जीसस।